واضح تنصیبات اور مشینری کے سروے میں چشم کشا انکشافات، بیشتر مشینری خراب اور زائد المیعاد نکلی۔ گندے پانی کے نکاس کے لیے ڈسپوزل اسٹیشن پر لگے پمپ بھی خراب۔ واسا نے پنجاب حکومت کو مشینری کی تبدیلی کے لیے سمری ارسال کر دی۔ واسا کو سیور کلیننگ مشینری اور واٹر ٹینکنگ سیٹ کی کمی کا سامنا ہے۔ اسی بارے مزید تفصیلات بتائیں کہ زین العابدین جی بتائیے۔ واسا انتظامیہ کی جانب سے مشینری اور تنصیبات کا ایک سروے کیا گیا، جس میں چشم کشا انکشافات سامنے آئے ہیں کہ واسا کی بیشتر مشینری خراب اور زائد المیعاد ہو چکی ہے، جبکہ گندے پانی کے نکاس کے لیے ڈسپوزل اسٹیشنز پر لگے جو پمپ ہیں وہ بھی خراب ہو چکے ہیں۔ واسا نے پنجاب حکومت کو مشینری کی تبدیلی کے لیے سمری بھی ارسال کر دی ہے۔ اس سمری میں یہ بتایا گیا ہے کہ واٹر پمپس، ٹرانسفارمرز، ویسٹ واٹر پمپس اور ڈرین کلیننگ مشینری بھی پرانی ہو چکی ہے، جبکہ واسا کو سیور کلیننگ مشینری اور ڈی واٹرنگ سیٹ کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ مانسون میں نکاسی آب میں مددگار مشینری زبو حالی کا شکار ہو چکی ہے۔ واسا نے سمری میں پنجاب حکومت سے 4 ارب 72 کروڑ 55 لاکھ روپے فنڈ جاری کرنے کی استدعا بھی کی ہے۔ اس سمری میں یہ انکشافات کیے گئے ہیں کہ واسا کے مختلف کیپیسٹی کے 57 ویسٹ واٹر پمپس اس وقت خراب ہو چکے ہیں، جبکہ واسا کے ڈسپوزل اسٹیشنز پر لگے 37 ٹرانسفارمر بھی خستہ حال ہو چکے ہیں۔ سمری میں 10 ڈمپ ٹرک، 5 لارج اور 3 اسمال ایکسکیویٹر خریدنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 2 لانگ بوم، 3 ویل لوڈر اور 5 ٹریکٹر ٹرالی خریدنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ واسا کو اس وقت 14 جیٹنگ مشین، 14 سکشن مشین اور 3 کرین کی کمی کا بھی سامنا ہے، جبکہ مانسون میں بارشی پانی کے نکاس کے لیے مددگار ثابت ہونے والے 10 ڈی واٹرنگ سیٹ خریدنے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ واسا کی جانب سے یہ سمری سیکرٹری ہاؤسنگ کو ارسال کر دی گئی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ زین۔ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کی کارروائی سامنے آئی ہے۔ پولیس کو مطلوب انسانی اسمگلر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم ساجد احمد نے شہریوں سے غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھجوانے کے لیے رقم وصول کی، جبکہ ملزم کی گرفتاری کے لیے جدید ترین تکنیکی اور تحقیقاتی وسائل بروئے کار لائے گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے راہیل علی سے۔ جی راہیل، آگاہ کیجیے۔ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور سے یہ کارروائی کی ہے اور بڑے عرصے سے مطلوب ملزم جو ہے وہ کامران ساجد احمد کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا۔ سب انسپیکٹر کامران ذیشان کی سربراہی میں جو ہے وہ ٹیم تشکیل دی گئی تھی، جس پہ ڈپٹی ڈائریکٹر ریاض خان نے جو ہے وہ اسپیشل اسکواڈ تیار کیا تھا، جس نے یہ ملزم کی جو ہے وہ گرفتاری کو ممکن بنایا۔ ملزم جو ہے 2016 سے انسانی اسمگلنگ اور ٹریفکنگ کے کاروبار میں ملوث تھا اور ایس آئی اے کو جو ہے وہ مختلف جو ہے پرچہ جات میں جو ہے یہ مطلوب بھی تھا، لیکن اس کی گرفتاری ممکن نہیں ہو رہی تھی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ریاض خان کا کہنا یہ ہے کہ خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی، جس نے ملزم کو جو ہے گرفتار کر لیا۔ ملزم لاکھوں روپے لے کر لوگوں کو جو ہے وہ بیرون ملک بھجواتا تھا، جس پر جو ہے وہ اب اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور اس سے جو ہے وہ مزید تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ جی، مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ شکریہ آپ کا۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی آمد مریضوں کی عیادت کی اور طبی سہولیات بارے دریافت کیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پی آئی سی پروفیسر ڈاکٹر احمد نعمان اور ایم ایس ڈاکٹر محمد تحسین کی طبی سہولیات بارے بریفنگ۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ مریضوں کو آسانی کے لیے بنیادی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسی بارے مزید تفصیلات بتائیں گے سجاد حسین۔ جی بتائیے۔ تو بالکل، نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مریضوں کی عیادت کی اور طبی سہولیات بارے دریافت کیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پی آئی سی پروفیسر ڈاکٹر احمد نعمان اور ایم ایس ڈاکٹر محمد تحسین نے نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کو مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات بارے بریفنگ دی۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے اس موقع پر کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی ہدایت پر جو ہے وہ مریضوں کا دیکھ بھال کے لیے بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی تمام تر جو ہدایات ہیں اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر احمد نعمان کے علاوہ ایم ایس ڈاکٹر تحسین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جاوید اکرم نے اس موقع پر کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی مختلف سرکاری اسپتالوں کا دورہ کر کے طبی سہولیات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آنے والے مریضوں کی آسانی کے لیے بنیادی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے تمام کارڈیالوجی ہسپتالوں میں پرائمری اینجیوپلاسٹی کامیابی سے جاری ہے اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آنے والے ہر مریض جو ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے اور پنجاب کی عوام کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ جی شکریہ سجاد۔ سیکرٹری اسپورٹس پنجاب زاہد زمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، جبکہ ڈاکٹر آصف طفیل نے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی ہے۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں جدید سہولیات فراہم کی گئی ہیں، جبکہ شاہد زمان نے بتایا کہ نئی ٹرف انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے معیار کے مطابق بچھائی گئی ہے، جبکہ نئی ٹرف ہاکی کی بحالی میں معاون ثابت ہوگی۔
मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, आगाही। पंजाब शाही तमाम की ज़ेर-ए-सदारत नेशनल हॉकी स्टेडियम में तज़ीम और आयश और नई टॉप के इफ्तिताह का इजलास हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म की मामून खुसूसी बराए उमूर नौजवान शीला फातिमा ऑनलाइन शरीक हुई। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब डॉक्टर आसिफ पटेल ने इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। डीजी स्पोर्ट्स ने कहा कि खुशी है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ नेशनल हॉकी स्टेडियम की तज़ीम और आयश और नई टॉप का इफ्तिताह करेंगे। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जदीद सहूलियात फराहम की गई है। नई टॉप इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के मुताबिक इजाई की है। नई क्लब से हॉकी को फरोग मिलेगा और खिलाड़ियों को खेल बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। नई क्लब हॉकी की बहाली में मुआवन साबित होगा। हॉकी हमारा कौमी खेल है जिसकी बहाली के लिए तमाम वसाइल कार लाए जा रहे हैं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब नेशनल हॉकी स्टेडियम की सालों बाद तज़मीन और आराइश की गई है। इसके मुताबिक डीजी स्पोर्ट्स ने मजीद कहा कि नई ट्रक बिछाने से इंटरनेशनल इवेंट्स भी मुनक्किद हो सकेंगे। इब्तिदाई तकरीब के लिए भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब ने मजीद कहा कि इब्तिदाई तकरीब यादगार होगी। हॉकी की मारूफ शख्सियात और स्पोर्ट्स के नामवर खिलाड़ी शरीक होंगे। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब ने मजीद कहा कि डीजी स्पोर्ट्स पंजाब डॉक्टर पटेल और दिगर ने नेशनल हॉकी स्टेडियम का मुआयना भी किया। इजलास में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जावेद महमूद, सेक्रेटरी स्कूल हसन रहीम, एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मारिया तारिक भी शरीक हुए। एमडी दानिश स्कूल अहमद मलिक, सेक्रेटरी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स लियाकत अली, सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी परवेज अजहर भी शरीक हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा के शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के दौरे। नज़रिया पाकिस्तान रोड पर प्रोटेक्टेड यू टर्न की तामीर, ज़ेर तामीर समनाबाद अंडरपास का दौरा किया। चीफ इंजीनियर इसरार सईद और साइट पर मौजूद प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर के अंडरपास के अतराफ लाइटिंग, पोल्स और लैंड मार्किंग का काम भी कल तक मुकम्मल करने की हिदायत। इसके बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी बताइए। एलडीए मोहम्मद अली रंधावा ने शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा किया है, जिसमें नजरिया पाकिस्तान रोड पर जो प्रोटेक्टेड यू टर्न तमीर किए जा रहे हैं कमिश्नर लाहौर की जानिब से उनका जायजा लिया गया। इसके साथ साथ जेर तमीर समनाबाद अंडरपास पर जो तामीराती काम जारी है उसकी भी चेकिंग की। चीफ इंजीनियर इसरार सईद और साइट पर मौजूद प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जानिब से कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग में बताया गया कि नजरिया पाकिस्तान रोड पर यू टर्न की तमीर का 100% काम मुकम्मल कर लिया गया है। यू टर्न की तमीर से शौकत खानम हस्पताल चौक सिग्नल फ्री जंक्शन बन चुका है, जबकि नजरिया पाकिस्तान रोड पर गफार चौक पर भी यू टर्न बना दिया गया है। इसके अलावा समनाबाद अंडरपास के दौरे के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि समनाबाद अंडरपास की एक साइड मुकम्मल तैयार है, जबकि दूसरी साइड को आज रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद गुलशन रावी से समनाबाद की जानिब जरिए अंडरपास सफर किया जा सकेगा। इस मौका पर मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से अंडरपास के अतराफ में लाइटिंग पोल्स और लेन मार्किंग का काम कल तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई। इस मौका पर डीजीएलडीए को बताया गया कि अंडरपास के अतराफ सर्विस रोड पर दिन रात काम जारी है। इजाफी मशीनरी और अमला 24 घंटे काम कर रहा है, जबकि समनाबाद अंडरपास की ब्यूटिफिकेशन पर भी काम तेजी से जारी है। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर की जानिब से पीएचए और मुतलका इदारों की टीमों को दिन रात काम करके ये जो हॉर्टिकल्चर का काम है इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई। आपका बहुत शुक्रिया जैन। पाक सुजुकी कंपनी का मोटरसाइकिल प्लांट 16 रोज़ के लिए बंद रखने का फैसला। प्लांट की बंदिश पर आवाम और डीलर्स का सख्त रद्द। डीलर्स का कहना है कि कारोबार पहले नहीं और अब मोटरसाइकिलों की सप्लाई भी मुतासिर होगी, जबकि शहरी कहते हैं मोटरसाइकिलों की कीमतों में पहले ही होशरुबा इजाफा हो चुका। प्लांट बंद होने और सप्लाई मुतासिर होने से कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जा रही है इस वजह करके सारे प्लांट बंद हो जाने हैं। आवाम की तरफ देख नहीं है, बाकी चीज़ें बंद हो रही हैं। हर चीज़ जो लेने चल जाओ वो मिलती नहीं है इस मुल्क में। कस्टमर है ही नहीं है, ठीक है। जिस तरह से महंगाई होती जा रही है और इस कदर कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। अब सुजुकी वालों की जो मोटरसाइकिल है वो मेरे ख्याल से 3 लाख से ऊपर से शुरू होती है, और आम बंदे के पास 3 लाख किधर है। यहाँ पर तो हर कस्टमर के पास कोई आते हैं, हम सारा दिन बैठे रहते हैं, लो जी 50,000 60,000 हद 80,000 रुपये तक होती है। 80,000 रुपये की सुजुकी मोटरसाइकिल ही नहीं है। सुजुकी की जो है ना ये तो यहाँ की प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे बंद हो चुकी है। इस वजह से जो ना बाहर से अगर आएगी तो वो बहुत महंगी होगी, सारी बात अफोर्डेबल नहीं होगी। यहाँ पे पाकिस्तान में बनेगी तो वो पाकिस्तान की जो यहाँ की है तो वो तो सारी बात है सस्ती मिलेगी आवाम को। बाइक भी महंगी कर रही है, ऊपर से दे भी नहीं रहे और इंस्टॉलमेंट भी बंद कर दी है, और इतनी कोई ख़ास बाइक भी नहीं है तो जो 4-5 लाख की भी लें। और इसकी रीसेल के ऊपर बात करें तो ये बिल्कुल फारिग है।
शहर में कहीं भी उगरा रेट पर LPG दस्तयाब नहीं है। LPG की कीमत कंट्रोल ना करने और छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई पर डिस्ट्रीब्यूटर्स की जुज़वी हड़ताल। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोकर कहते हैं कि आज 4 घंटे की शटर डाउन हड़ताल की गई है। 5 और 6 अगस्त से मुल्क भर में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। ऐसे में रिक्शे वाले जिनका रोज़गार ही LPG से वाबस्ता है, उनका क्या कहना है, जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ओगरा रेट के मुताबिक शहर भर में कहीं भी LPG दस्तयाब नहीं है, जबकि छोटे दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी जानिब से आज 4 घंटे तक लगातार हड़ताल की गई है और ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त और 6 अगस्त को भी लगातार हड़ताल की जाएगी। ऐसे में रिक्शे वाले जिनका रोज़गार ही LPG से वाबस्ता है, इनके ऊपर क्या गुजरती हैं वो जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, LPG की हड़ताल आज 4 घंटे तक की गई और ओगरा रेट के मुताबिक ही क्या आप LPG डलवाते हैं? क्या LPG का रेट आपको दिया जा रहा है? 250 रुपये किलो का रेट दिया जा रहा है हमें, और 250 में अगर सवारी से पैसे लेते हैं तो सवारी इतने पैसे नहीं भरती। तो थोड़ा सा इधर तो जाना है, 100 रुपया बहुत है, 50 रुपये बहुत हैं, तो मुश्किल हुआ है रोज़ी कमाना। अगर LPG बंद होगी तो हम रिक्शा पेट्रोल पे लाएंगे, पेट्रोल पहले ही बहुत महंगा है, तो एवरेज पूरी नहीं होगी, तो यही है भी बेरोज़गारी हो जाएगी। जी बिल्कुल, अगर LPG की जो हड़ताल होती है 5 या 6 अगस्त को, तो उस पर सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो रिक्शे वाले होंगे, क्योंकि इनका रोज़गार मुकम्मल तौर पे LPG से ही वाबस्ता है। दूसरा, रिक्शे वाले से हमने बात की, उसका ये कहना था कि ओगरा के रेट के तजावुज़ करके जो है वो LPG इनको मिलती है और जब ये कस्टमर बिठाते हैं तो वो भी पूरे इनको पैसे नहीं देता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली के बिलों में इजाफे के बायस शहर की मार्केट्स और बाज़ारों में कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ने का खदशा। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील। नईम मीर कहते हैं बिजली के बिल अदा करना मुहाल हो गया, ताजर दोहरी मुसीबत में मुब्तला हैं, घर और दुकान के बिजली के बिल अदा करने के लिए रकम मुयस्सर नहीं। वज़ीर आज़म छोटे ताजर और आवाम के लिए रिलीफ तलाश करें। जनाब वज़ीर आज़म साहब, बिजली के बिल अदा करना मुहाल हो चुके हैं। बिजली की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि घरेलू इस्तेमाल के सार्फिन और कमर्शियल बिजली इस्तेमाल करने वाले ताजर दोनों ही परेशान हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस अहम तरीन मसले पर न सिर्फ आप नोटिस लें, बल्कि ताजर की आदत को खास तौर पे एतमाद में लें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ताजर जो है उसको दोहरा नुकसान हुआ। एक तरफ घर का बिल अदा करना है बिजली का, तो दूसरी तरफ दुकान का बिल भी अदा करना है। मार्केट में चीनी के निर्ख मुसलसल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। शहर भर में चीनी कम अज कम 150 रुपये फ़ी किलो में बेची जा रही है। पंजाब हुकूमत ने चीनी रेट पर इत्तेफाक के राय के लिए शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान से बातचीत करने का फैसला किया है। चीनी की मिठास कड़वी होने लगी, सरकारी रेट लिस्ट नज़रअंदाज, चीनी की मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी। वफाकी हुकूमत ने चीनी का निर्ख 98 रुपये 82 पैसे मुकर्रर किया है। मार्केट में चीनी कम अज़ कम 150 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त की जा रही है। चंद हफ्ते से चीनी के निर्ख मुसलसल तेज़ हैं। होलसेल मार्केट में चीनी के निर्ख 142 रुपये फ़ी किलो तक हैं। चीनी का एक्स मिल्स रेट 137 रुपये फ़ी किलो तक है। शहरियों का कहना है कि शय ज़रूरिया के निर्ख हुकूमती कंट्रोल में होने चाहिए। भाई चीनी बहुत महंगा है और कोई कंट्रोल नहीं है। मेहरबानी करके मौजूदा हुकूमत क्या ये ज़रा कंट्रोल हो जाए और एक रेट मुकर्रर हो जाए, उस पर इशू हो जाए। चीनी कोई भी आए, हुकूमत कोई भी हो, लेकिन हमारा ताल्लुक है आटा, चीनी, दालें वगैरह, इनके साथ हमारा ताल्लुक है, तो ये हमें कम से कम सस्ती मिलनी चाहिए। मार्केट ज़राए के मुताबिक अदालती मामलात की वजह से चीनी के निर्खों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ताहम पंजाब हुकूमत चीनी की कीमत के तयन के लिए मुतहर्रिक हो गई है। मंगल को केन कमिश्नर पंजाब और शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, जिसमें कीमत के तयन का जायजा लिया जाएगा। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। मुल्की सियासी टेम्परेचर में इजाफा, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर को मुंतखब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आइंदा 48 घंटों में लंदन वापस लौटेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर को मुंतखब कर लिया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर दीगर पार्टियों के अफराद के बड़े पैमाने पर नून लीग में शमूलियत के लिए फहरिस्तें तैयार। नून लीग 30% नए चेहरों के साथ जनरल इंतखाबात में जाएगी।
استحकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलाआत डॉक्टर फिरदौस आशिक अवा ने कहा है कि दुश्मन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से मुल्क की अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। बाजोड़ खुदकुश हमले के पीछे वही मुल्क दुश्मन अनासिर हैं जो मुल्क में मस्बत डेवलपमेंट के वक्त अपना मकरू हकीकी चेहरा दिखाते हैं। फिरदौस आशिक अवा ने बाजोड़ एजेंसी में होने वाले खुदकुश धमाके पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी JUI कन्वेंशन पर खुदकश हमले की शदीद मजम्मत करती है। बाजोड़ धमाका मुल्क अमन अमान को तबाह करने की साजिश है। धमाके में शहीद होने वालों के बुलंद दर्जात के लिए हम दुआ करते हैं। निगरान हुकूमत पंजाब को काम से रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त कानूनदान आफ्ताब बाजवा ने दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पंजाब में निगरान हुकूमत की आइन में दी गई मियाद ख़त्म हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख में तोसी की, लेकिन निगरान हुकूमत पंजाब को तोसी नहीं दी। इस्तदा है कि निगरान वज़ीर आला को फ़ौरी ओहदे से हटाने का हुक्म दिया जाए और निगरान हुकूमत पंजाब को काम से रोकने के अहकामात भी जारी किए जाएँ। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग स्कीमों से मुतालिक शिकायत के इज़ाले के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी निजी हाउसिंग स्कीमों के हवाले से मौजूद कवानीन के मुताबिक शिकायत के फैसले करेगी। निजी हाउसिंग स्कीमों से मुतल्लिक़ शिकायत के अजाले के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान के हुक्म पर पंजाब हुकूमत की जानब से कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग व अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी के अरकान में DG LDA, स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, चीफ मेट्रोपोलिटन प्लानर समेत दीगर मुतल्लिका अदारों के नुमाइंदे शामिल हैं। कमेटी निजी हाउसिंग स्कीमों की मैनेजमेंट से मुतल्लिक़ मामलात का जायजा लेगी। कमेटी निजी हाउसिंग स्कीमों से मुतल्लिक़ शिकायत और दरखास्तें वसूल और फैसले करेगी। शहरियों को अपनी शिकायत और दरखास्तें LDA 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए जमा करवाने की हदायत। LDA की हदूद से बाहर के शहरी अपनी शिकायत मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जमा करवा सकेंगे। जस्टिस शाहिद जमील खान की अदालत में ऐसे तमाम ज़ेर समाअत मुकदमात के फ्री कैन कमेटी के रूबरू पेश होंगे। कमेटी फ्री कैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करेगी। कमेटी शिकायत के अजाले, फैसलों और हदायत से मुतल्लिक समाही रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार को भी इरसाल करेगी। कमेटी की इजाजत के बगैर कोई भी निजी हाउसिंग स्कीम अपने रिहायशी या दरखास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम शाहिद अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने जस्टिस सफदर सलीम शाहिद को गुलदस्ता देकर रुखसत किया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम शाहिद अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद के एजाज में अदालत आलिया में सादा मगर पुरवकार अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस मुसम्मल अख्तर शबीर, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस राहील कामरान शेख और जस्टिस समजर रफीक भी शरीक हुए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट इरफान अहमद सईद, DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अमीर मोहम्मद खान, सेशन जज ह्यूमन रिसोर्स अब्दुल रशीद आबद, अफसरान और स्टाफ मेंबर्स भी अलविदाई तकरीब में मौजूद थे। रिटायर्ड होने वाले फाजिल जज ने तमाम जजेस, अफसरान और स्टाफ से फर्दन मुलाकात की। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने जस्टिस सफदर सलीम शाहिद को गुलदस्ता देकर रुखसत किया। लाहौर हाई कोर्ट में मौजूदा जजेस की तादाद 40 है, जबकि खाली असामियों की तादाद 20 हो गई है। महंगी बिजली के बाद LPG की कीमतों में भी इजाफा। फ़ी किलोग्राम कीमत में 23 रुपये 86 पैसे इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 201 रुपये 15 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर में 281 रुपये 51 पैसे का इजाफा। नई कीमत 2373 रुपये 64 पैसे हो गई। इसी बारे मज़ीद तफसीलात बताएंगे फ़हद अमीन। जी फ़हद। आज बिल्कुल एक जानिब तो आवाम जो है वो महंगी बिजली से परेशान है, तो दूसरी जानिब LPG की कीमतों में भी जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पहले दुकानदारों की जानिब से मनमाना इजाफा किया जा रहा था और अब जो है वो ओगरा की जानिब से LPG की फी किलो कीमत में 23 रुपये 86 पैसे जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इस इजाफे के बाद LPG के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर में 281 रुपये 51 पैसे जो है वो इजाफा हुआ है। LPG के 18.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत जो है वो अब 2373 रुपये 64 पैसे जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। जुलाई में LPG की 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2092 रुपये 13 पैसे थी, जबकि LPG की कीमतों का तयन जो है वो आइंदा माह अगस्त में जो है वो किया जाएगा। आज जो है वो ओगरा की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया।